about the human skeletal system. So they are going to tell you. They are going to tell you all about the human bones, starting from the skull. So human का जो पूरा skeletal system होता है, that changes after every 10 years. हर 10 साल बाद आपके पूरे शरीर का नया कंकाल तंत्र बनता है. Do you know this? This is a kind of amazing fact. After 10 years, this complete system is replaced inside your body, and again the new system is formed. Now you count your age. अगर कोई 40 है या 30 है तो मतलब आपकी बॉडी के 3 skeleton तो बन गए हैं. If anybody is 30 years, जो 18 years में है, अभी after 2 or 3 years आपका दूसरा skeleton फिर से नया बनेगा. So they will tell you about all the bones, each and everything. Let me tell you before that, in human body, the smallest bone in human body, and anybody knows the smallest bone in human body कौन सी है? It is only 0.1 inch. 0.1 inch सिर्फ human की smallest bone है. It is present inside the ear, in the middle ear. That is stapes. S-T-A-P-E-S. Stapes is the smallest bone inside the human body, present in the ear. And the longest bone, it's very easy. Longest bone in the human body is thigh bone. Thigh bone is the longest bone, and it is known as femur. F-E-M-U-R, femur. And the size in adult, if we talk about the adult, the size is 18 to 20 inches. That is femur. So please welcome to all the biology students from 11th Science to be play a role of doctors of the bones. So please welcome. Everybody please give a big hand for all the students once. Today we are going to get in brief description about bones. As you all can see, this is a human skeleton system. Human skeleton system is the framework of bones and cartilages. हमारे skeleton system में total 206 bones होती हैं. और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे skeleton system दो subdivisions में divided है. Axial skeleton system और appendicular skeleton system. Axial skeleton system वो होता है जो हमारी body के main axis से connected होता है, जैसे कि skull, sternum, vertebral column और हमारे rib cage. Axial skeleton system टोटल 80 बोन्स होती हैं और हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्कल क्या होता है. Skull. This is a protective bone of our head. Firstly, it is divided into two parts: cranial bones and facial bones. These total bones are 22, and cranial bones are 8, and facial bones are 14. Let's start from cranial bones. This is a frontal bone, and at the back it is a parietal bone. Near the ear it is a temporal bone. From the head it is a occipital bone. At the last it is a occipital condyle bone. Now coming towards the facial bones. हमारे फेस के आगे वाले हिस्से में जो भी बोन्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें कहते हैं फेशियल बोन. सबसे पहले नोज के कार्टिलेज के ऊपर की बोन को कहते हैं नेजल बोन. उसके बाद ये वाली हमारे ईयर के साइड अबव को कहते हैं जाइगोमेटल बोन. हमारे जॉस के ऊपर वाली बोन को कहते हैं मैग्जिला. हमारे जॉ के नीचे वाले को कहते हैं मैंडिला. हमारी आईज के अंदर 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं. एक होती है इथेमॉइड बोन और एक होती है लैक्रिन बोन. आपको बताऊंगा वर्टिकल कॉलम के बारे में. जो हमारा वर्टिकल कॉलम होता है वो 26 सीरियली अरेंज बोन से बना होता है. और जो हमारे पहले की जो वर्टिकल कॉलम की जो वर्टिब्रे होती है उसको हम सर्विकल वर्टिब्रे कहते हैं, जो कि 7 वर्टिब्रे से बनी होती है. नेक्स्ट हमारी आती है थोरिक वर्टिब्रे, जो कि हमारी 12 वर्टिब्रे से बनी होती है. उसके बाद ये जो आती हैं इन्हें हम ल्यूमर वर्टिब्रे कहते हैं. और ये जो है इसको हम सैक्रम बोलते हैं और इसको हम कॉकेक्स बोलते हैं, जिससे हम बोन टेल के नाम से भी जानते हैं. जो हमारा सर्विकल वर्टिब्रे जो प्रेजेंट होती है वो हमारी नेक में प्रेजेंट होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक. फिर हमारा थोरेसिक आता है जो कि हमारी चेस्ट में प्रेजेंट होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक. फिर हमारा आता है ल्यूमर वर्टिब्रे जो कि यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट होती है और ये हमारी पैनी को बैलेंस करके रखती है. फिर हमारा आता है ये सैक्रम और ये टेल. उसके अब आपको और ये जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, हमारी हेड को सपोर्ट करती है और हमारी रिब केज को भी सपोर्ट करती है. थैंक यू. There are 12 pair of ribs.
प्रेजेंट होती है। और जो रिब्स होती है ये थिन फ्लैट बोन होती है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होती है वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम से। स्टर्नम एक थिन फ्लैट बोन होती है जिसे हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। जो ये रिब्स होती है ये थोरेसिक वर्टिब्रे से कनेक्ट होती है, इसलिए हम सारे रिब्स को बाइसेफेलिक कहते हैं। रिब्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। डायरेक्टली जो 7 पेयर ऑफ रिब्स होती है उन्हें हम प्रो रिब्स कहते हैं क्योंकि हमारी डायरेक्टली स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है। और उसके बाद हमारी 8th, 9th और 10th पेयर ऑफ रिब होती है, वो डायरेक्टली उसे हम फॉल्स रिब कहते हैं और डायरेक्टली हमारी वर्टिब्रल कॉलम से तो जॉइंट होती है, इनडायरेक्टली हमारे स्टर्नम से जॉइंट होती है। और जो लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं 11th और 12th उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से जॉइंट होते हैं और इसलिए हम उनको वर्टिब्रल रिब्स भी कहते हैं। और उसका मेन फंक्शन होता है कि जो हमारी किडनी और इनर ऑर्गन होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना। ये हमारे अपर आर्म्स जिन्हें हम बोलते हैं पेक्टोरल टेरस। स्टार्ट होती है हमारी कॉलर बोन से जिसे हम कहते हैं क्लेविकल। उसके डॉर्सल साइड में आती है फ्लैटेड ट्रायंगल बोन जिसे बोलते हैं स्टैपुला। फिर उसके बाद शोल्डर से लेकर एल्बो तक आती है हमारी ह्यूमेरस, जिसके बाद 2 बोन्स आती हैं। थंब की साइड वाली होती है रेडियस और उसके साथ वाली होती है अल्ना। फिर आता है हमारे हाथ जो कि स्टार्ट होते हैं रेस्ट से जिसमें कि 1 कार्पस होते हैं। फिर इसके ऊपर आते हैं हमारे पाम का एरिया जिसमें 5 मेटाकार्पस होते हैं। फिर इसके ऊपर आते हैं हमारे फिंगर्स जिसमें कि 14 फैलेंजेस होते हैं। पैल्विक एरिया के बारे में जो कि स्टार्ट होता है कॉक्सियल बोन से। और जो हमारी कॉक्सियल बोन होती है वो 3 बोन के ग्रुप से बनी हुई होती है। पहला होता है इलियम, उसके बाद आता है प्यूबिस और थर्ड आता है इस्कियम। उसके बाद जो हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन जो कि मैम ने बताया था जिसको फीमर बोलते हैं वो हमारे थाई में प्रेजेंट होती है और ये यहाँ से नी तक प्रेजेंट होती है। और जो हमारा घुटना होता है वो सॉफ्ट होता है तो उसे नी कप जो होता है वो कवर करता है। उस नी कप को हम बोलते हैं पटेला। और पटेला के नीचे से जो हमारी बोन होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक थिन और एक थिन। जो थिक वाली बोन होती है उसे हम बोलते हैं टीबिया और जो थिन वाली बोन होती है उसे हम बोलते हैं फिब्यूला। और जो टीबिया होती है वो हमारे लेग के थंब में जाके जॉइंट होती है और जो हमारी फिब्यूला होती है वो हमारे लेग के फिंगर से जाके जॉइंट होती है। और हमारे हील से लेके हमारे टोज तक जो बोन होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जो हमारे हील में बोन होती है उसे हम बोलते हैं टार्सल और मिडल में होती है उसे हम बोलते हैं मेटाटार्सल और जो हमारे फिंगर्स में होती है उसे हम बोलते हैं फारलेग। नेक्स्ट टॉपिक इज जॉइंट। जॉइंट एक ऐसा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जो हमारी 2 बोन्स और कार्टिलेज के बीच में प्रेजेंट होता है। और हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में 250 से 350 जॉइंट प्रेजेंट होती है। और हमारी जॉइंट 3 टाइप्स की होती हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजस जॉइंट या साइनोवियल जॉइंट। फर्स्ट है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट मूवमेंट को अलाउ नहीं करती है, ये इमूवेबल जॉइंट होती है। ये प्रेजेंट होती है स्कल में और फॉर्म करती है क्रेनियम को। सेकेंड है कार्टिलेजियस जॉइंट। ये कार्टिलेजियस जॉइंट मूवेबल जॉइंट होती है और ये प्रेजेंट होती है वर्टिब्रल 1 और वर्टिब्रल 2 की डिस्क में प्रेजेंट होती है और ये मूवमेंट को अलाउ करती है। थर्ड है साइनोवियल जॉइंट। ये मूवमेंट को अलाउ करती है, ये प्रेजेंट होती है कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में, एटलस और एक्सिस के बीच में और ये लोकोमोशन को अलाउ करती है और ये फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करती है। थैंक यू। नेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। फर्स्ट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सब समझ रहे होंगे, मसल्स की डिस्ट्रॉफी होना। मसल्स की डिस्ट्रॉफी आपने सुना होगा कुछ लोग चल नहीं पाते, एक जगह बैठे रहते हैं तो उनमें एक रीजन होता है जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। जो स्केलेटल सिस्टम से आपको दिख रहा है पूरा सिस्टम या मसल से रिलेटेड हमारी बॉडी में डिसऑर्डर्स होते हैं। जो फर्स्ट डिसऑर्डर होता है वो होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में एक्चुअल में क्या होता है कि आपके मसल्स के सेल्स जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल, जिसकी वजह से आपकी मसल्स की वजह जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो खत्म हो जाता है। सो यू हैव सीन लॉट ऑफ पीपल दे आर नॉट एबल टू वॉक। वो नीचे ही रहते हैं, वो ना तो खड़े हो पाते हैं ना तो वो बिना किसी की हेल्प के लेट भी पाते हैं। तो उनको एक हेल्पर चाहिए होता है बिकॉज उनकी मसल्स की जो प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, वो खत्म हो जाती है। एंड दीज प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर ड्यू टू द प्रोटीन प्रेजेंट इन आवर बॉडी, एक्टिन एंड मायोसिन। तो इसलिए कहते हैं कि प्रोटीन्स का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में क्योंकि वो हमारी बॉडी की सारी कॉन्ट्रैक्शन कराती है। और बिना कॉन्ट्रैक्शन के अपने हाथ को आप ऐसे भी नहीं कर सकते हैं बिकॉज समटाइम्स देखें अपने हाथ को खींचते हैं ऐसे, किसी चीज को उठाना थोड़ा हम एक्स्ट्रा स्ट्रेच करते हैं। वो क्यों करते हैं? बिकॉज हमारी मसल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को अपने साइज के अकॉर्डिंग उससे ज्यादा खींच सकती है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है, दैट इज अर्थराइटिस। सबने सुना है अर्थराइटिस को, हम कॉमनली बोलते हैं गठिया, सबने सुना है। इसमें क्या होता है कि आपके जो जॉइंट्स होते हैं, जितने भी जॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, अपना रिस्ट में जॉइंट दिख रहा है, कार्पल्स के बीच में या एल्बो में दिख रहा है या नी में दिख रहा है,
यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आई मीन स्वेलिंग, रेडनेस, जिसकी वजह से आपको पेन, जब मॉर्निंग में ऐसे लोग जब मॉर्निंग में उठते हैं तो उनको अपने बोन्स के बीच में जो कनेक्शंस होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली एक ऐसा डिसऑर्डर है जो एज रिलेटेड होता है, उम्र के हिसाब से। ये यंगस्टर्स को किसी को भी नहीं होगा, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस में हमारी जो बोन्स की डेंसिटी होती है, मास होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। तो आपने सुना होगा डॉक्टर्स कहते हैं कि यू आर ओल्ड, आपकी बोन्स की डेंसिटी और बोन्स का मास कम हो रहा है। उसका रीज़न आपको नहीं पता। वो रीज़न क्या होता है कि ओल्ड एज पीपल्स में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन नहीं बनता है, और एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो होता है बोन्स की रिजिडिटी और डेंसिटी मेंटेन करने में यूजफुल होता है। जैसे ही आप ओल्ड होना शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन नहीं बनेगा, आपकी बोन्स की डेंसिटी कम होगी, आपकी बोन्स कमजोर होने लगेंगी, इसीलिए ब्रिटल होने लगेंगी। ब्रिटल मतलब जैसे आप थोड़ा सा गिरे, आपका फ्रैक्चर आ गया। फॉर दैट रीजन ओल्ड पीपल्स को ऐसा कहा जाता है कि यू मस्ट टेक केयर, आप कहीं बाहर ना जाए, बिकॉज एक बार अगर आप गिर गए और फ्रैक्चर हो गया तो वो रिकवरी करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज एट दैट टाइम सर्जरी इज नॉट पॉसिबल। कोई भी डॉक्टर कुछ बाहर की चीज रॉड्स नहीं डाल सकते हैं, बिकॉज बोन डेंसिटी बिल्कुल ही कम हो जाती है, तो रिकवरी करना ना के बराबर होता है। सो दीज आर फ्यू डिसऑर्डर्स। एक डिसऑर्डर और है जो बहुत मेन है, वो आपको शायद नहीं पता, उसका नाम होता है गाउट। गाउट में एक्चुअल में क्या होता है, गाउट जो डिसऑर्डर है वो आपकी बोन्स का डिसऑर्डर आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनीज प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, किडनीज मतलब किडनीज के अंदर मिलियंस ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स, मतलब फिल्टरेटिंग यूनिट्स, आई मीन जैसे आपने चाय छानने वाली छन्नी देखी है जिसको बोलते हैं स्ट्रेनर, वो क्या करती है, चाय को छानती है। सिमिलरली हमारे पूरे ब्लड को फिल्टर करने के लिए हमारी हर एक किडनी में मिलियंस ऑफ फिल्टरेटिंग यूनिट्स नोन एज नेफ्रॉन्स होती है। उनका काम होता है कि पूरे शरीर के खून को छानने के बाद जो गंदगी, जो टॉक्सिक मटेरियल हमारे शरीर के अंदर बने हैं, उन सबको यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकालना। अगर आपकी नेफ्रॉन्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है तो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस, आई मीन यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इकट्ठे होंगे। जब यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इकट्ठे होंगे आपकी नेफ्रॉन्स में, तो आपकी बॉडी से बाहर नहीं जा रहे हैं थ्रू यूरिनरी ब्लैडर। सो व्हाट हैपन, दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन योर जॉइंट्स, वो आपके जॉइंट्स में इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे जब जॉइंट्स में इकट्ठा होंगे तो फिर से इन्फ्लेमेशन होगी, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, पेन होगा। सो दिस डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो दीज डिसऑर्डर्स तो बहुत, बट आई कैन नॉट डिस्कस विद यू ऑल। दीज आर फ्यू कॉमन डिसऑर्डर्स जो आई थिंक सबको पता होने चाहिए। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से यू दैट फॉर मेकिंग योर स्केलेटल सिस्टम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्गर, प्लीज इनटेक ऑफ मिल्क शुड बी डेली। आपको 1 गिलास मिल्क डेली लेना चाहिए। और कर्ड जो होता है, कर्ड दही, उसमें मिल्क से ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है, तो कर्ड इज द बेस्ट। कर्ड सबको लेना चाहिए, और मिल्क तो सबको, बच्चों को लेना ही लेना है, बिकॉज उसमें जो भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारे एलिमेंट्स मिलके हमारी हड्डियाँ बनाते हैं, और ये सारी हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है एवरी 10 ईयर में रिप्लेस होता है। हर 10 साल बाद ये पूरा नया बनता है। अब आप सोचिए कि आपका स्केलेटल आप 40, 50, 60 ईयर्स के हैं, तो 6 बार आपकी बॉडी के अंदर नया स्केलेटल सिस्टम बन चुका है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कोई भी चीज इस अर्थ में कांस्टेंट नहीं रहती है। इवन हमारी बॉडी के सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी 120 डेज बाद वो भी मर जाते हैं। एवरी टाइम दे आर, कुछ सेल्स तो है कि वो डेली मर रहे हैं और डेली न्यू बन रहे हैं। सो दिस इज द रूल ऑफ दिस यूनिवर्स कि एवरीथिंग हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय अदर। एक सेल अगर डिवाइड हो रहा है तो पीछे वाला सेल मर रहा है, तभी वो डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट वो डिवाइड तो पीछे वाला खत्म। लाइकवाइज ह्यूमन बॉडी हैज 37 ट्रिलियंस ऑफ सेल। आपकी बॉडी में 37 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अगर हम अपने डीएनए की बात करें तो अगर हम अपना डीएनए को बॉडी से बाहर निकालें तो हम इस अर्थ के 4 राउंड्स ले सकते हैं, पूरे अर्थ के। इतना बड़ा डीएनए, इतनी बड़ी हमारी ब्लड कैपिलरीज के साथ भी सिमिलरली ये है, तो यू आर लाइक मोस्ट पावरफुल। आवर बॉडी इज इक्वल टू अर्थ। हमारा शरीर अगर पूरे अर्थ को कवर कर सकता है तो आई मीन यू कैन डू एनीथिंग। सो दिस ऑल इज अबाउट योर ह्यूमन बॉडी। आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा, ज़्यादा नहीं, बिकॉज जितने बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा समझ सकते हैं, बिकॉज उन्होंने डिटेल में पढ़ा है। बट कुछ पॉइंट्स मैंने ऐसे सोचा था कि आपके साथ डिस्कस करूंगी जो आपको समझ में आए, बिकॉज यू शुड हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर बॉडी, बिकॉज आई एम वेरी कीन इन लर्निंग बायोलॉजी एंड माई स्टूडेंट्स सेम, दे आर लाइक मी ओनली। तो इनको भी इंटरेस्ट होता है, तो फॉर दैट रीजन वी हैव डिसाइडेड, बिकॉज